So in this tutorial, we are going to learn about the const. Like const are nothing but derived from the constant, right? तो const का मतलब यही होता है कि like basically they are constant. एक बार जो डिक्लेयर कर दिया तो उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाओगे. const तभी डिक्लेयर किया जाता है लाइक मतलब जिनको आप जिन वैल्यूज को आप चेंज नहीं करना चाहते पूरे थ्रू आउट द कोड उनको इस लाइक तो क्या करते हो आप वहाँ पे const डिक्लेयर करते हो उस वेरिएबल को या उस मतलब वेरिएबल को आप const के थ्रू डिक्लेयर करते हो. The const keyword was introduced in ECMAScript 6 2015. The const keyword was introduced in ECMAScript 6 2015. Variables defined with const cannot be redeclared. ना तो उनको redeclare किया जा सकता है ना उनको reassign किया जा सकता है ना. एंड वेरिएबल डिफाइंड विद कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप. तो उनका और एक ब्लॉक स्कोप भी होता है. ना तो रीडिक्लेयर किया जा सकता है ना तो रिडिफाइन किया जा सकता है और उनका एक ब्लॉक स्कोप भी होता है. cannot be reassigned, cannot be reassigned, cannot be reassigned. A variable defined with the const keyword cannot be reassigned. A variable defined with the const keyword, a variable defined with the const keyword cannot be reassigned. A variable defined with the const keyword की एक वेरिएबल जो कि लाइक तुमने क्या किया है कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किया है कैन नॉट बी रीअसाइंड. उसको दोबारा रीअसाइन नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जांपल const pi equal to 3.1415926535, right? Something like that. Then pi equal to 3.14 and pi equal to pi plus itna pi equal to pi plus 10. This will also give an error. This will also give an error. You are trying to declare pi equal to 3.14. तुमने यहाँ पे const नाम एक वेरिएबल बनाया जिसको const दे दिया. एक वेरिएबल बनाया पाई के नाम से जिसको कि कॉन्स्ट के अंदर रखा हुआ है कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके बनाया है. तो तुम दोबारा पाई को नहीं बना सकते इवन तुमने आगे कुछ लिखा है या नहीं लिखा बट दिस विल गिव यू एन एरर. पाई इक्वल टू पाई प्लस 10. दिस विल आल्सो गिव यू एन एरर. मस्ट बी असाइंड जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट वेरिएबल्स मस्ट बी असाइंड अ वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड. जब भी वो कॉन्स्ट कीवर्ड जो होता है वो तुम असाइन मतलब डिक्लेयर कर रहे हो तो उनको वैल्यू असाइन करना बहुत ही जरूरी है. इधर यू असाइन अ वैल्यू और यू कैन राइट नल और यू कैन राइट नल. इधर यू असाइन अ वैल्यू और यू कैन राइट नल. pi const pi equal to itna and pi equal to itna. This is considered incorrect in JavaScript. 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 When to use JavaScript const? JavaScript const को कब यूज करना चाहिए? Always declare a variable with const when you know that the value should not be changed. जब तुम्हें पता है कि आगे उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करना है then try to use the const keyword. Use const when you declare. Use const when you declare a new array, a new object, a new function, a new regular expression. So like these are the common practice that you should do. Use const when you declare a new array, a new object, a new function or a new regular expression, right? इन चारों चीजों को जब भी तुम डिक्लेयर कर रहे हो try to use the const. Try to use the const like कब and when you are declaring a new array, a new object, a new function or new regular expression. जब इन चारों चीजों को डिक्लेयर कर रहे हो तब, right? Const objects and array, constant objects and array, constant objects and array. The keyword const is a little misleading. The keyword const is a little misleading. It does not define a constant value. It does not define a constant value. It defines a constant reference to a value. It defines a constant reference to a value. It defines a constant reference to a value. Because of this, you cannot reassign a constant value, reassign a constant array, reassign a constant object. फिलहाल अभी इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की तुम्हें जरूरत नहीं है. एज वी विल सी एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. बट यू कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ एन कांस्टेंट एरे. तुम क्या कर सकते हो तुम एरे की वैल्यू मतलब जो एरे है उसको दोबारा असाइन नहीं कर सकते बट तुम एरे की वैल्यू को चेंज कर सकते हो. वी विल सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर. हमें एग्जांपल में भी पता लग जाएगा. लाइक कांस्टेंट एरेज बना सकते हो. यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ एन कांस्टेंट एरे. तुम एक कांस्टेंट एरे के एलिमेंट को चेंज कर सकते हो बट कांस्टेंट एरे को चेंज नहीं कर सकते. लाइक यू कैन क्रिएट अ कांस्टेंट एरे. तो ये तुमने क्या बनाया कांस्टेंट कीवर्ड को यूज करके एक क्या बना दिया एरे बना लिया. अब कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पे साहब की जगह देखो कार ऑफ जीरो पर तुमने क्या डाला टोयोटा डाला. यू कैन चेंज इन द एलिमेंट. ठीक है तुम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो कार ऑफ जीरो पर तुमने क्या डाल दिया टोयोटा डाल दिया और कार डॉट पुश तुमने क्या कर दिया ऑडी डाल दिया. तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो तो तुम चेंज कर पाओगे वो तो तुम इजिली चेंज कर पाओगे. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, राइट? हम इस एग्जांपल चल के देख लेते हैं एक बार. Like here is the basic boilerplate of the HTML code with the heading h2 equal to JavaScript constant. Declaring a constant array does not make the element unchangeable. Declaring a constant array does not make the elements unchangeable. Elements को हम हमेशा चेंज कर पाएंगे. द पैराग्राफ टैग विद आईडी इक्वल टू डेमो. अब यहाँ से स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है यहाँ से अपनी जावास्क्रिप्ट. तो क्रिएट एरे सबसे पहले हमने एक एरे क्रिएट किया कॉन्स्ट कार्स इक्वल टू सैब वॉल्वो एंड बीएमडब्ल्यू. चेंज द एलिमेंट की कार के जीरो पर क्या कर दो टोयोटा कर दो. जीरो मतलब साफ की जगह क्या कर दो टोयोटा कर दो. कार डॉट पुश क्या कर दो पुश करने पर तुमने एक ऑडी भी डाल दी. अब तुमने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो के अंदर तुम क्या करो इनर डॉट एचटीएमएल को तुमने क्या किया इक्वल टू कार्स कर दिया. मतलब हमें क्या करना है इनर एचटीएमएल
के अंदर तुम क्या कर दो, कार्स की वैल्यू निकाल दो, कार्स की वैल्यू निकाल दो सिंपली, राइट। तो कार्स की वैल्यू में तुमने सबसे पहले तो आगे टोयोटा आ जाएगा और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑडी आ जाएगा। तो चार वैल्यूज आ जाएंगी, टोयोटा, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, टोयोटा, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। तो दिस इज नथिंग बट रियली सिंपल टास्क। कहने का मतलब ये जीरो पर तुमने वैल्यू चेंज की है, जीरो पर तुमने वैल्यू चेंज की है, और पुश करने से क्या होता है कि एरे की लास्ट में एक वैल्यू ऐड हो जाती है। दैट्स रियली सिंपल। कहने का मतलब ये तुमने कांस्टेंट नाम से एरे बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एरे के एलिमेंट को चेंज नहीं कर पाओगे। ये बात बहुत ही गलत है। तुमने कांस्टेंट को यूज करके भले ही एरे बनाया है, तुम लेट को यूज करके भी बना सकते थे, ठीक है, वेर तो हम अवॉइड करते हैं, लेट को यूज करके भी बना सकते थे। लेकिन इवन इफ तुमने क्या किया, कॉन्स्ट को यूज करके बनाया, क्योंकि तुम एरे को नहीं चेंज करना चाहते। एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, एलिमेंट चेंज कर सकते हो लेकिन एरे को नहीं चेंज करना चाहते। एरे को चेंज करना और एरे के एलिमेंट्स को चेंज करना अलग अलग बातें हैं, राइट। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि तुम इसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, एलिमेंट में ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, राइट। तो हमने ये देख लिया। उसके बाद है कि बट यू कैन नॉट रीअसाइन द एरेज, लेकिन तुम एरे को दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। जैसे कॉन्स्ट कार्ड, कार्स तुमने ऐसे कर दिया, फिर कॉन्स्ट कार्ड इक्वल टू टोयोटा ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली करना चाह रहे हैं कि तुमने दोबारा एक एरे नहीं बनाना है, उसके एलिमेंट को चेंज कर लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट इसी तरह सेम बात इस तरह सेम बात कांस्टेंट ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई होती है। यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, कि तुम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, बट तुम सेम नाम का मतलब सेम ऑब्जेक्ट दोबारा रीडिक्लेयर मत करो। तो कॉन्स्ट कार इक्वल टू तूने बनाया ऑब्जेक्ट जिसके अंदर टाइप लिखा फिएट, मॉडल लिखा 500, कलर इक्वल टू वाइट। यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी कार डॉट कलर, कार डॉट कलर, कार डॉट कलर, कार मतलब उसका नाम लिखो, डॉट प्रॉपर्टी लगाकर ऐड कर दो। यू कैन ऐड अ प्रॉपर्टी कार डॉट ओनर, तूने क्या डाला, कार डॉट ओनर, जो प्रॉपर्टी अंदर है नहीं तो उसको बाहर लगा के तूने जॉनसन डाल दिया, तो वो प्रॉपर्टी अंदर ऐड हो जाएगी। इसको भी देख लो एक बार कोड के अंदर चल के फटाफट। यहाँ पे कुछ नहीं, अगेन लाइक डिक्लेयरिंग अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट मेक द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज अनचेंजेबल। अगर तुमने ऐसा नहीं है कि तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है कॉन्स्ट को यूज करके मतलब, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर पाओगे, तुम उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को चेंज कर पाओ। ये मैं यहाँ पे जॉनसन की जगह राजा भैया लिख देता हूँ, तब भी बात वही है। राजा भैया से इतना ज्यादा प्यार है कि पूछो मत हमें। कार ओनर इज राजा जी, कार ओनर इज राजा जी, समझ गए आप। इस तरह तुम उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, बट अगर तुम कहो कि यहाँ पे तुम दूसरा है वो बना लो, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। कार इक्वल टू, देखो कार इक्वल टू जैसे एरो डालूंगा, आई होप सो इसको एरर देना चाहिए, इतना ही कर देते, इतने में एरर आ जाएगा। देखो एरर ही आ गया, गायब भी हो गया, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया विच कार इन डॉट एचटीएमएल, लाइक कौन सी कार की बात करूं मैं, समझ गए। तो इस तरह तुम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। कुछ भी नहीं दे रहा मतलब, लाइक दैट ऑब्जेक्ट इज रियली कंफ्यूज, राइट। अब हम आगे चलते हैं बट यू कैन नॉट रीअसाइन, बट यू कैन नॉट री असाइन दी ऑब्जेक्ट, लेकिन तुम ऑब्जेक्ट को ऐसे रीअसाइन नहीं कर सकते हो। ध्यान से देख लो इस एग्जांपल को, ऐसे रीअसाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द वेयर लेट एंड कॉस्ट, तो ये अगेन उसके वेयर लेट और कॉस्ट के स्कोप और इसके बारे में बताया हुआ। आई थिंक ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वाला चार्ट अपने प्रीवियस वीडियो में, ये वाला चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, राइट। एंड नाउ व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, हम इसकी ये प्रैक्टिस भी देख लेते हैं। तो व्हाट इज गुड, लेट एंड कॉस्ट है ब्लॉक स्कोप। तो लेट एंड कॉस्ट का ब्लॉक स्कोप होता है, ये सब हमने ऑलरेडी ऐसे लास्ट लेट वाले में भी पढ़ा था, बट लेट्स अगेन रिवाइज दिस। तो लेट एंड कॉस्ट cannot be redeclared. Let and cost must be declared before use. Let and cost not bind to this. Let and cost are not hoisted. What is not good, where does not have to be declared, where is hoisted, where binds to this, like browser support की कोई जरूरत है नहीं। ब्लॉक स्कोप के बारे में बताया हुआ, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विद कॉस्ट इज सिमिलर टू लेट। तो जो हाल लेट का था वही हाल कॉस्ट का है, इन दोनों का ब्लॉक स्कोप होता है। मतलब ब्लॉक के अंदर जो डिक्लेयर है वो ब्लॉक के अंदर रहेगा, ब्लॉक के बाहर जो डिक्लेयर है वो ब्लॉक के बाहर रहेगा। तो जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या देखोगे, तो यहाँ पे 2 मिलेगी, बाहर देखो 10 मिलेगी, बाहर देखोगे 10 मिलेगी। ये बहुत ही सिंपल बात है। यू कैन आल्सो लर्न दिस अबाउट द जावास्क्रिप्ट स्कोप के बारे में। रीडिक्लेयरिंग अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज अलाउड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अगर तुम वेयर यूज करके रीडिक्लेयर कर रहे हो किसी को, तो ये कहीं भी कर सकते हो, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। रीडिक्लेयरिंग एन एग्जिस्टिंग वेयर और लेट वेरिएबल टू कॉस्ट इन द सेम स्कोप इज नॉट अलाउड। अगर वेर और तुमने क्या किया है, लेट, वेर और लेट को यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और तुम चाहते हो कि उसको कॉस्ट यूज करके तुम डिक्लेयर कर लो, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे तुमने वेर एक्स यहाँ पे 2 लिख दिया, तो और कॉस्ट एक्स इक्वल टू 2 कर रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड। लेट एक्स इक्वल टू 2 लिख दिया, कॉस्ट एक्स इक्वल टू 2 कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। इसके अंदर कॉस्ट एक्स इक्वल टू 2 लिख दिया, कॉस्ट इतना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, राइट। तो ध्यान से करना होता है कि कॉस्ट के ऊपर तुमने उस नाम का कोई भी चीज बनाई है, तो कॉस्ट उसको नहीं अलाउ करेगा दोबारा बनाने के लिए, राइट। So like const x equal to 2 and x equal to 2, variable x equal to 2, let x equal to 2, const x equal to 2। तो इसमें बताया गया है कि
एक बार तुमने कॉस्ट को 2 दे दिया, उसके बाद तुम कुछ भी बनाओगे दिस विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू फिक्स हो गई। एक बार तुमने x दे दिया, यहाँ पे कॉस्ट x इक्वल टू 2, ये देखो। उसके बाद तुम ब्लॉक के अंदर बुलाओ, ब्लॉक के बाहर, दिस शुड नॉट बी अलाउड, राइट। अब यहाँ पे बात आती है रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विद कॉस्ट इन अनदर स्कोप और अनदर ब्लॉक इज अलाउड। अनदर स्कोप और अनदर ब्लॉक में अलाउड है। जैसे तुमने यहाँ पे कॉस्ट x इक्वल टू 2 कर दिया, कॉस्ट अंदर x इक्वल टू 3 कर रहे हो, तो ब्लॉक स्कोप होता है ना ये। तो ब्लॉक स्कोप है तो यहाँ पे अलाउड है ये, फिर इस ब्लॉक में भी अलाउड है, समझ रहे हो तुम। एंड होस्टिंग, दिस इज ओके। वेयर कार नेम इक्वल टू, ये हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखी है, तो ये तो ओके है, लेकिन कॉस्ट में आई गेस इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट, हाँ ठीक है, वेरिएबल डिफाइंड विद कॉस्ट आर आल्सो होस्टेड टू द टॉप, कि तुम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो बट नॉट इनिशियलाइज, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि इनिशियलाइज बाद में कर रहे हो। हमने क्या किया, कॉस्ट कार नेम इक्वल टू, देखो वेरिएबल डिफाइंड विद द कॉस्ट आर आल्सो होस्टेड टू द टॉप, तो जिसको तुमने कॉस्ट के थ्रू डिफाइन किया वो भी टॉप को होस्ट हो जाएंगे बट नॉट इनिशियलाइज, इनिशियलाइज नहीं होंगे। मीनिंग यूजिंग अ कॉस्ट वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड विल रिजल्ट इन रेफरेंस एरर। अभी हम इसको ट्राई करते हैं, देन वी विल गेट टू नो कि क्या कहना ये चाह रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर सीधा चलते हैं। अलर्ट के अंदर हमने कार नेम डाला, कॉस्ट कार नेम इक्वल टू वॉल्वो कर दिया। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कार नेम को बाद में डिक्लेयर किया, बाद में इनिशियलाइज किया, लेकिन अलर्ट के अंदर हम पहले यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मतलब एटलीस्ट कहने का मतलब ये है कि तुम एटलीस्ट इतना कर लो। एरर तब नहीं आएगा अगर तुम क्या करो, यहाँ पे कॉन्स्ट, और क्योंकि डिक्लेयर और इनिशियलाइज ये एक साथ ही किए जाने चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते तुम। इस लाइन को ऊपर ही जाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रिजॉल्व द एरर, तो इस लाइन को क्या क्या जाना पड़ेगा। देखो अभी अभी इसको रन करो, कुछ नहीं हो रहा ना, लेकिन अगर मैं इस लाइन को उठाकर क्या करूँ, इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे लिख लूँ, कंट्रोल वी, अब रन करेंगे तो देखो क्या होता है, वो वॉल्वो आ गया, एरर हो जाएगा सॉल्व। एरर क्या हो गया, सॉल्व, राइट। तो कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है, यहाँ से उठाओ और यहाँ पे नीचे रख दो, इस बात का ध्यान रखना होता है, राइट। एंड विद दिस हमारा ये कॉन्स्ट का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, राइट। सो इन वीडियोस अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत ही लाइक ऐसा नहीं कि हाँ एकदम रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, दीज आर रियली इजी टॉपिक्स एंड यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली। इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है।